नमस्कार, वंदे मातरम दोस्तों। चैप्टर कंपनी एनुअल अकाउंट्स में प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। प्रीवियस सेशन में वी हैव डिस्कस अबाउट क्वेश्चंस ओनली बैलेंस शीट फॉर्मेट लाइक लायबिलिटी, असेट्स, ओनली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दिस इज कंपोजिट सम, यानी टुगेदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट इज टू बी प्रिपेयर्ड, यानी दोनों फॉर्मेट प्रिपेयर करने हैं, स्टेटमेंट ऑफ P&L एंड बैलेंस शीट। एंड combinedly it's a question of 11 marks in board examination. Last section, two questions of annual account, one is from partnership annual accounts and second from company annual accounts, company final accounts. So 11 marker long question, profit and loss account and balance sheet. So सबसे पहले इसके फॉर्मेट्स याद कर लेते एक बार। स्टेटमेंट ऑफ P&L की शुरुआत होती है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस यानी सेल्स से। सेल्स प्लस अदर इनकम मिला के होता है टोटल रेवेन्यू। फर्स्ट आइटम इज सेल्स और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, उसके साथ मर्ज करेंगे अदर इनकम, सो टोटल रेवेन्यू। उसमें से माइनस करने हैं एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंसेस के लिए हमने यहाँ पे न्यूमोनिक्स में याद रखा है PCD EFDO। PCD EFDO stands for all expenses, where P is for purchase, C is for change in stock, means change in stock of raw material, that is opening stock minus closing stock। चेंज इन स्टॉक में याद रखना है ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। देन D इज डायरेक्ट एक्सपेंसेस, E इज फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, F इज फॉर फाइनेंस कॉस्ट यानी इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, D इज फॉर डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एंड O इज फॉर अदर एक्सपेंसेस। तो PCD EFDO इज द शॉर्ट की फॉर एक्सपेंसेस, जिसमें P परचेज, C चेंज इन स्टॉक, D डायरेक्ट एक्सपेंसेस, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एंड अदर एक्सपेंसेस। ये सारे एक्सपेंसेस का टोटल करेंगे तो वो होगा टोटल एक्सपेंसेस। टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंसेस गिव्स यू प्रॉफिट बिफोर टैक्स। टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंसेस इज प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और उसमें से टैक्स माइनस करने पे, प्रोविजन फॉर टैक्स माइनस करने पे हमें मिलेगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। Another format is of balance sheet. तो balance sheet में there are two sides. It's a vertical form of presentation of balance sheet and statement of P&L. तो vertical form में यहाँ पे पहले first part is equity and liabilities, and in that there are three subheads: shareholders fund, non-current liability and current liability. तो बैलेंस शीट वर्टिकल फॉर्म में प्रिपेयर होगा यहाँ पे, जिसमें पहले लाइबिलिटी साइड है जिसके अंदर तीन पार्टीशन: शेयर होल्डर्स फंड, नॉन करंट लाइबिलिटी एंड करंट लाइबिलिटी। Key for shareholders fund is SR. S stands for share capital and R is for reserves and surplus. Share capital के अंदर equity and preference share capital, and reserves and surplus में any type of revenue and capital reserve like general reserve, reserve fund, workers compensation reserve, capital reserve, contingency, all type of reserves are part of this reserves and surplus. Second subhead on liability side is non-current liabilities. Is non-current liabilities. Its short key is LOL. Short key is LOL, where L is long-term borrowings, O is other long-term liabilities, and L is long-term provisions. Long-term borrowings, other long-term liabilities, and long-term provisions. It is non-current liability. After that, third head is current liability, and its key is STOS. Key है STOS, where S is for short-term borrowings, T is for trade payables, O is other current liability, and S is short-term provisions. STOS. Again, liability side को एक बार रिपीट करते हैं। सबसे पहला टाइटल आएगा लाइबिलिटी साइड का, मेन हेडिंग इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। उसके अंदर फर्स्ट सब हेड शेयर होल्डर्स फंड, वेयर टू कंपोनेंट्स S and R. S is for share capital and R is for reserves and surplus. Second subhead is non-current liability. Its key is LOL, where L is long-term borrowings, O is other long-term liabilities, and last L is long-term provisions. Third head on the liability side is current liability, and its key is STOS, where S stands for short-term borrowings, T is trade payables, O is other current liability, and last S is short-term provisions. सेकेंड पार्ट ऑफ बैलेंस शीट डील्स विथ असेट्स, यानी ये असेट्स की कैटेगरी है, और असेट्स के अंदर दो पार्टीशन, नॉन करंट असेट्स एंड करंट असेट्स। नॉन करंट असेट्स की है FNLO। FNLO
is the key for non-current assets, where F is fixed assets. F stands for fixed assets. It has two component, tangible assets and intangible assets. Tangible like land, building, plant, machine, furniture, fixtures, vehicles, and intangible like goodwill, patent, trademark, copyright, computer सॉफ्टवेयर, फ्रेंचाइज. तो ये सब असेट्स के अंदर आएंगे, फिक्स असेट्स में. उसके बाद नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, एन इज फॉर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट मींस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, एल इज लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, एंड ओ इज अदर नॉन करंट असेट्स. सो एफ एन एल ओ इज द की फॉर नॉन करंट असेट्स ऑन असेट साइड, वेयर एफ इज फॉर फिक्स असेट्स, इसमें टेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स, एन इज नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, L is long-term loans and advances, and O is other non-current assets. Current assets, second dimension of asset side is current assets, जिसके लिए की है CIT CSO. CIT CSO 6 कंपोनेंट है करंट एसेट्स में, जिसमें फर्स्ट है करंट इन्वेस्टमेंट, देन इन्वेंट्रीज, देन ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, एंड लास्ट इज अदर करंट एसेट्स. एक बार फिर से असेट साइड को याद कर लेते हैं, इसमें दो ही डायमेंशन, नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स. फर्स्ट हेड इज नॉन करंट एसेट्स एंड इट्स की इज FNLO, वेयर F इज फिक्स एसेट्स. इसमें दो डायमेंशन, टेंजिबल एंड इंटेंजिबल एसेट्स. N इज नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, L इज लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, एंड O फॉर अदर नॉन करंट एसेट्स. एंड फॉर करंट एसेट्स key is CIT CSO, where C is current investment, I inventories, T trade receivables, C is cash and cash equivalent, S is short term loans and advances, and last item O is for other current assets. तो इस तरह से first requirement is to remember this formats of statement of P&L and balance sheet. इसको याद रख लेना है. एग्जाम में 11 मार्कर लॉन्ग क्वेश्चन में देयर इज अ चांस कि हर एक हेड की आइटम्स ना दी जाए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू प्रिपेयर द फॉर्मेट, और फिर उसमें जो जो फोल्ड में आइटम्स है, अमाउंट है, वो हम भरते जाएंगे और इस तरह से फाइनल अकाउंट्स को टैली करेंगे. तो इस तरह से फॉर्मेट याद करना, फर्स्ट रिक्वायरमेंट स्टेटमेंट ऑफ P&L एंड बैलेंस शीट का. नाउ टू प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, 11 मार्कर लॉन्ग क्वेश्चन. ये दो लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज के, क्वेश्चन नंबर 9 and 10, एंड वी नीड टू प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ P&L एंड बैलेंस शीट बोथ. सो लेट्स प्रोसीड विद क्वेश्चन नंबर 9. फर्स्ट ऑफ ऑल, ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31st March 17 इज गिवन फॉर केयूर लिमिटेड. केयूर लिमिटेड नेसेसरी फॉर्मेट्स इज बीन प्रिपेयर्ड. अब एक एक करके आइटम्स के साथ डील करेंगे. इसमें फर्स्ट आइटम है इक्विटी शेयर कैपिटल 2,40,000. तो इक्विटी शेयर कैपिटल इज ऑन लायबिलिटी साइड, शेयर कैपिटल में आता है. तो फर्स्ट आइटम यहाँ पे 2,40,000 इक्विटी शेयर कैपिटल. शेयर कैपिटल के बाजू में मेंशन करना है इक्विटी हो तो इक्विटी, प्रेफरेंस हो तो प्रेफरेंस, एंड देन उसका अमाउंट फर्स्ट कॉलम में लिखना है. दिस इज इनर कॉलम फॉर कंप्यूटेशन पर्पस. यहाँ पे हम हेड वाइज इंटरनल आइटम को मेंशन करके हेड वाइज टोटल आउटर कॉलम में निकालेंगे, और हर एक हेड के टोटल के साथ फाइनल बैलेंस शीट का टोटल निकाला जाएगा. तो फर्स्ट आइटम इज शेयर कैपिटल 2,40,000. नेक्स्ट इज ऑफिस एंड सेल्स एक्सपेंसेस, इट इज पार्ट ऑफ अदर एक्सपेंसेस. तो यहां पे आएगा P&L के फॉर्मेट में 24,000 ऑफिस एंड सेल्स एक्सपेंसेस. देन परचेजेस, तो ये P&L में आता है. परचेज एक डायरेक्ट आइटम है, 4,26,000 इज द अमाउंट फॉर परचेज. नेक्स्ट आइटम इज 10% डिबेंचर, दिस इज लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स. तो लायबिलिटी साइड पे नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के हेड में आएगा 10% डिबेंचर्स 1,20,000. उसके बाद है सेल्स 9,60,000, दिस इज पार्ट ऑफ P&L. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 9,60,000. सॉफ्टवेयर, नेक्स्ट आइटम इज सॉफ्टवेयर 1,20,000. सॉफ्टवेयर इज इनटेंजिबल एसेट. सो ऑन असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट फर्स्ट नॉन करंट एसेट्स के फिक्स एसेट्स के अंदर टेंजिबल इंटेंजिबल में, इंटेंजिबल में आएगा सॉफ्टवेयर 1,20,000. आफ्टर दैट नेक्स्ट आइटम इज वेजेस. वेजेस इज एक्सपेंस डायरेक्टली लिंक विद प्रोडक्शन, सो इट इज डायरेक्ट एक्सपेंस. सो डायरेक्ट एक्सपेंस इसके अंदर मेंशन करेंगे, वेजेस 24,000. उसके बाद है डिबेंचर इंटरेस्ट, मींस इंटरेस्ट पेड ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स. इट्स अ पार्ट ऑफ फाइनेंस कॉस्ट. सो फाइनेंस कॉस्ट के अंदर डिबेंचर इंटरेस्ट की अमाउंट आएगी 12,000. सैलरी, सैलरी इज गिवन टू एम्प्लॉय, सो पार्ट ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस. तो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस के हेड में इनर कॉलम में यहाँ पे सैलरी मेंशन करते हुए अमाउंट लिखेंगे 3 लाख रुपीस.
बैंक ओवरड्राफ्ट इज शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस, यानी शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे करंट लायबिलिटी के अंदर शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में मेंशन करेंगे बैंक ओवरड्राफ्ट 14,400। लैंड एंड बिल्डिंग इज असेट, सो ऑन असेट साइड नॉन करंट एसेट्स में फर्स्ट फिक्स असेट में इट्स पार्ट ऑफ टेंजिबल एसेट, लैंड एंड बिल्डिंग इज पार्ट ऑफ टेंजिबल एसेट, सो 2,28,000 असेट साइड पे। Opening stock is given. Now opening stock is used to compute change in stock. Change in stock is an item of statement of P&L. Purchase के immediate बाद आता है change in stock. Opening minus closing. Opening stock minus closing stock is termed as change in stock, जिसमें opening stock की amount हम यहाँ पे mention करेंगे inner column में 36,000. Discount received is an income. सो इनकम में आएगा ये अदर इनकम का हिस्सा, इसलिए सेल्स के अलावा अदर इनकम में डिस्काउंट रिसीव्ड 15,600। एंड लास्ट आइटम ऑफ दिस ट्रायल बैलेंस इज डेटर्स 1,80,000। इट इज पार्ट ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल इज पार्ट ऑफ करंट एसेट्स। तो असेट साइड पे करंट एसेट्स के हेड में ट्रेड रिसीवेबल में डेटर्स की अमाउंट आएगी 1,80,000। Now there are two adjustment is given. One is closing stock of 42,000. तो closing stock हमें दिया गया है 42,000. Every adjustment has two-fold effect, जिसमें closing stock 42,000 की first effect आएगी यहाँ पे statement of P&L में, जहाँ पे हम change in stock mention कर रहे हैं वहाँ opening minus closing होता है। तो opening 36,000 and closing 42,000, तो 36,000 minus 42,000 is minus 6,000. It's negative 6,000. खास ध्यान रखना है चेंज इन स्टॉक की आइटम में साइन केयरफुली मेंशन करना है यहाँ पे, नहीं तो पूरा आंसर गलत हो जाएगा। तो चेंज इन स्टॉक इज ऑलवेज ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, कभी क्लोजिंग माइनस ओपनिंग नहीं, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग करना है। यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक इज हायर देन ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग इज 36, क्लोजिंग इज 42, डिफरेंस इज माइनस 6,000। 36,000 माइनस 42,000 इज नेगेटिव 6,000। सो नेगेटिव साइन के साथ यहाँ प्रेजेंट करेंगे चेंज इन स्टॉक में क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक की दूसरी इफेक्ट आएगी बैलेंस शीट में असेट साइड पे करंट एसेट्स के हेड में इन्वेंट्रीज में, करंट एसेट के हेड में इन्वेंट्रीज में मेंशन करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 42,000। इसके बाद एक और एडजस्टमेंट है प्रोविजन फॉर टैक्स। तो वो स्टेटमेंट ऑफ P&L को जब हम फाइनलाइज करेंगे तब ये अप्लाई होगा प्रोविजन फॉर टैक्स का एडजस्टमेंट। तो उसके लिए फाइनलाइजेशन की प्रोसेस में सबसे पहले ये दो आइटम का टोटल करेंगे 9,60,000 एंड 15,600 टुगेदर कंस्ट्रक्ट टोटल रेवेन्यू ऑफ 9,75,600। ये टोटल रेवेन्यू में से अब हमें एक्सपेंस का टोटल यानी 426 माइनस 6,000, 24,000, 3,12,000 एंड 24,000 का, ये सारे एक्सपेंसेस का टोटल है 7,80,000। So total revenue is 9,75,600 and total expenses of 7,80,000. So profit before tax item is profit before tax is A minus B, यानी total revenue minus total expenses. Profit before tax is 9,75,600 minus 7,80,000. So profit before tax की amount आएगी 1,95,600. अब यहाँ पे provision for tax is given as 50%. तो 1,95,600 का 50% होगा 97,800, so it is charged as provision for tax and remaining amount is profit after tax. Amount is same because tax rate is 50%, so जितना provision for tax है same amount is profit after tax 97,800. अब ये दो आइटम जो यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स के जो दो टुकड़े हुए उसकी हमें सेकंड इफेक्ट यहाँ पे देनी है। जैसे प्रोविजन फॉर टैक्स हमने लगाया 97,800, तो ये यहां पे प्रोविजन फॉर टैक्स शॉर्ट टर्म, यहां पे प्रोविजन फॉर टैक्स हम मेंशन करेंगे यहां पे शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में प्रोविजन फॉर टैक्स 97,800 is part of करंट लायबिलिटी, जिसमें शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में आएगा 97,800 प्रोविजन फॉर टैक्स। और जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बचा है 97,800 प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इट्स पार्ट ऑफ बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विच इज पार्ट ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस। इट इज पार्ट ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस, इसलिए यहाँ पे मेंशन करेंगे बैलेंस ऑफ P&L के तौर पे। तो खास ध्यान रखना है ये जो
अमाउंट आता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इसमें से दो पार्ट करने हैं, एक है प्रोविजन फॉर टैक्स, दूसरा है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. प्रोविजन फॉर टैक्स इज पार्ट ऑफ शॉर्ट टर्म प्रोविजंस and profit after tax is part of reserves and surplus, so to be specified clearly for that. 97,800 and this 14,400 together construct this current liability. तो यहां पे अमाउंट आएगा 1,12,200, 1,12,200. 1,12,200 is the amount of this current liability together, bank overdraft and provision for tax. अब इसको यहाँ पे ये तीन हेड के जो आइटम है, पहले शेयर होल्डर्स फंड का नेट अमाउंट है 3,37,800, इन दोनों का टोटल. नॉन करंट लाइबिलिटी में सिर्फ एक आइटम है, वो है डिबेंचर्स 1,20,000 स्ट्रेट वे आउटर कॉलम में. करंट लाइबिलिटी के अंदर 14,400 एंड 97,800 टुगेदर 1,12,200 होगा. लाइबिलिटी साइड का टोटल आएगा 5,70,000. इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड का टोटल है 5,70,000. अब असेट साइड पे जो नॉन करंट असेट्स है उसमें लैंड, बिल्डिंग एंड सॉफ्टवेयर, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल के टोटल को पहले बाहर निकालेंगे 3,48,000. इसके साथ बाकी के तीन हेड में कोई आइटम यहाँ पे नहीं है, इसलिए नॉन करंट एसेट्स का फाइनल टोटल 3,48,000. करंट एसेट्स में 6 में से सिर्फ दो डायमेंशन है हमारे पास, क्लोजिंग स्टॉक एंड डेटर्स. 42 and 1,80,000 together construct current assets and its amount is 2,22,000. It is added with this non-current assets of 348, means 348 plus 222 together total of asset side is 5,70,000. So 570 से ये बैलेंस शीट टैली होगी, liability side 570 and asset side 5,70,000. So this is all about final accounts of companies. खास ध्यान रखना है एडजस्टमेंट के बारे में. फ्रीक्वेंटली आस्क एडजस्टमेंट में दो ही एडजस्टमेंट है, क्लोजिंग स्टॉक और दूसरा प्रोविजन फॉर टैक्स. क्लोजिंग स्टॉक की दो इफेक्ट, एक स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में चेंज इन स्टॉक की जगह पे ओपनिंग माइनस क्लोजिंग करने पे आएगा. खास ध्यान रखना है साइन के बारे में. ओपनिंग अगर ज्यादा है, क्लोजिंग कम है तो पॉजिटिव साइन आएगी, क्लोजिंग ज्यादा है तो नेगेटिव साइन आएगी. क्लोजिंग स्टॉक की दूसरी इफेक्ट, यहाँ पे एसेट साइड पे करंट एसेट्स के अंदर इन्वेंट्रीज में जाएगा क्लोजिंग स्टॉक. दूसरा है प्रोविजन फॉर टैक्स, ये एक एडजस्टमेंट हो सकता है. तो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल को फाइनलाइज करेंगे जिसमें टोटल रेवेन्यू में से टोटल ऑफ एक्सपेंसेस माइनस करने पे मिलेगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स. उसमें से स्टिपुलेटेड रेट पे जो हमें क्वेश्चन में दिया हो उस रेट पे टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स अप्लाई करेंगे और उसके बाद मिलेगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. प्रोविजन फॉर टैक्स इज पार्ट ऑफ शॉर्ट टर्म प्रोविजंस एंड इट इज पार्ट ऑफ करंट लायबिलिटी एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज पार्ट ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस अंडर द हेड ऑफ शेयर होल्डर्स फंड. उसके बाद हेड वाइज टोटल निकालेंगे. हेड वाइज टोटल के बाद लायबिलिटी साइड पे तीन कंपोनेंट, शेयर होल्डर्स फंड, नॉन करंट लायबिलिटी एंड करंट लायबिलिटी, जिसका फाइनल टोटल आएगा लायबिलिटी साइड का. और असेट साइड पे दो कंपोनेंट है, नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स, इसके जिसकी वजह से यहाँ पे असेट साइड का टोटल आएगा एंड इट इज सेम, लायबिलिटी एंड एसेट्स शुड बी सेम. इस तरह से हम टैली करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्थ लिमिटेड, उसका ट्रायल बैलेंस दिया है हमें. नीड टू प्रिपेयर अगेन स्टेटमेंट ऑफ पीएलएल एंड बैलेंस शीट. तो एक एक आइटम चेक करते हैं. यहाँ पे सबसे पहले सेल्स 11,25,000. सेल्स इज पार्ट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की आइटम है, तो यहाँ पे मेंशन करेंगे 11,25,000 सेल्स की अमाउंट. उसके बाद है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस. तो डायरेक्ट एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में 1,95,000. इन्वेंट्रीज दिया गया है हमें. अब ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये क्वेश्चन में हमें ओपनिंग स्टॉक दिया गया था ट्रायल बैलेंस में और यहाँ पे इन्वेंट्रीज दिया गया है. ओपनिंग स्टॉक जब दिया था तब क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के बाहर था, यानी एज ए पार्ट ऑफ एडजस्टमेंट दिया गया था. और यहाँ पे हमें इन्वेंट्रीज दिया गया है और क्वेश्चन में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसलिए जब इन्वेंट्रीज दिया जाए तो ये क्लोजिंग स्टॉक को रिप्रेजेंट करता है. और जब भी क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर होता है तब कभी भी ओपनिंग स्टॉक नहीं दिया जाता, क्योंकि कॉम्पोजिट टर्म बनता है आइदर एडजस्टेड परचेज के नाम पे, या तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम के नाम पे, या तो सीओजीएस के नाम पे, जिसका नॉलेज होना जरूरी है. तो उसको एक बार याद कर लेते हैं. कैश परचेज और क्रेडिट परचेज को मिलाए तो ग्रॉस परचेज मिलता है, ग्रॉस परचेज बनता है. ग्रॉस परचेज माइनस परचेज रिटर्न इज नेट परचेज. ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक is adjusted purchase. Adjusted purchase plus purchase expenses is cost of material consumed, and cost of material consumed plus direct expenses linked with production will give you cost of goods sold.
तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे हमें इन्वेंट्रीज दी गई है, क्लोजिंग स्टॉक दिया गया है, इसलिए क्वेश्चन में या तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम दिया होगा, या तो एडजस्टेड परचेज दिया होगा, या तो डायरेक्टली सीओजीएस दिया होगा। अब क्वेश्चन में परचेज और ओपनिंग स्टॉक के सेपरेटली दिए जाने के कोई चांसेस नहीं है, ये माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए। यहाँ ओपनिंग स्टॉक है इसलिए परचेज दिया है, यहाँ इन्वेंट्रीज यानी क्लोजिंग स्टॉक इज पार्ट ऑफ ट्रायल बैलेंस, so there is no chance that opening stock and purchase can be given independently. It is always a part of composite term, so whenever inventories or closing stock is given in trial balance, we need to look for either adjusted purchase or cost of material consumed or cost of goods sold. ये तीन में से एक टर्म जरूर दिया होगा, जैसे ये क्वेश्चन में यहाँ पे COGS दिया है। तो यहाँ पे इन्वेंट्रीज है जो रिप्रेजेंट करता है क्लोजिंग स्टॉक को, जिसके लिए हम बैलेंस शीट में असेट साइड पे करंट एसेट्स के अंदर डायरेक्ट मेंशन करेंगे इन्वेंट्रीज 1,65,000 एज अ क्लोजिंग स्टॉक। नेक्स्ट आइटम है फाइनेंस कॉस्ट 26,250 एंड इट्स एक्सपेंस। फाइनेंस कॉस्ट फाइनेंस एक्सपेंस स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में एक्सपेंसेस के लिस्ट में आएगा फाइनेंस कॉस्ट 26,250। After that, security premium. Security premium is a capital profit for the company and it is shown under the heading of reserves and surplus. तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे इक्विटी लायबिलिटी में शेयर होल्डर्स फंड में रिजर्व्स और सरप्लस में यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व की अमाउंट आएगी 60,000। आफ्टर दैट फिक्स एसेट्स दिया गया है हमें टेंजिबल 12 लाख रुपए का। तो फिक्स एसेट है इसलिए वो असेट साइड पे नॉन करंट एसेट्स के हेड में फिक्स एसेट्स के अंदर टेंजिबल 12 लाख रुपीस। ट्रेड पेएबल्स दिया गया है। ट्रेड पेएबल्स इज अ बैलेंस शीट आइटम जिसमें वो लायबिलिटी साइड पे करंट लायबिलिटी के अंदर आएगा ट्रेड पेएबल्स 90,000। इक्विटी शेयर कैपिटल अगेन लायबिलिटी साइड पे फर्स्ट हेड जो है शेयर होल्डर्स फंड उसका हिस्सा बनेगा शेयर कैपिटल 7,50,000। उसके बाद है ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल इज पार्ट ऑफ करंट एसेट, सो बैलेंस शीट में असेट साइड पे करंट एसेट के अंदर ट्रेड रिसीवेबल की आइटम आएगी 60,000। अदर इनकम इज पार्ट ऑफ रेवेन्यू, सो यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में आफ्टर दिस रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस यानी सेल्स के साथ ऐड करेंगे 30,000 अदर इनकम। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स दिया गया है 5,25,000। लायबिलिटी साइड पे जो सेकंड हेड है नॉन करंट लायबिलिटीज उसके अंदर आता है वो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स 5,25,000। आफ्टर दैट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इट इज पार्ट ऑफ करंट एसेट्स, तो बैलेंस शीट में एसेट साइड पे करंट एसेट्स के अंदर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का हेड है डायरेक्ट 90,000 उसमें अमाउंट आएगी। उसके बाद डेप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन इज पार्ट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल और एक्सपेंसेस के लिस्ट में यहाँ पे डेप्री एंड अमोर्टाइजेशन 33,750। COGS cost of goods sold is given 6 lakh rupees and cost of goods sold is composite item of opening stock plus purchase expense, production expense minus closing stock। यानी अगर हम यहाँ पे देखें तो परचेज, चेंज इन स्टॉक और डायरेक्ट एक्सपेंसेस ये तीनों को मर्ज करने पे एक ही टर्म बनता है COGS कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इसलिए तीनों का डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन है 6 लाख रुपीस जो कि आउटर कॉलम में मेंशन करेंगे। उसके बाद है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट इज पार्ट ऑफ असेट्स में नॉन करंट एसेट्स की कैटेगरी में नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के हेड में आएगा 2,10,000। इसके बाद यहाँ पे एडजस्टमेंट की इफेक्ट देनी है लेकिन कोई एडजस्टमेंट नहीं है इसलिए फाइनलाइजेशन की प्रोसेस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस एंड अदर इनकम का टोटल करने पे टोटल रेवेन्यू मिलेगी 11,55,000 11,55,000 इस टोटल रेवेन्यू। एक्सपेंसेस का टोटल करेंगे जिसमें यहाँ पे 4 कैटेगरी में एक्सपेंसेस है जिसका टोटल है 8,55,000। 11,55,000 टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंसेस ऑफ 8,55,000, so profit before tax is 3 lakh. Profit before tax 3 lakh. No information for provision for tax. So profit after tax is one and the same, just like profit before tax. Practically ये possible नहीं है कि कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में टैक्स एप्लीकेशन ना हो, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर टैक्स नहीं दिया गया। सो व्हेनेवर क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट प्रोविजन फॉर टैक्स डिडक्शन नहीं करना है and the amount of profit before tax itself becomes amount of profit after tax, and this profit after tax is part of reserves and surplus. Balance of P&L is always part of reserves and
सरप्लस, तो ये 3 लाख रुपए यहाँ पे शेयर होल्डर्स फंड में रिजर्व्स एंड सरप्लस के हेड में बैलेंस ऑफ पीएनएल के तौर पे हम लिखेंगे 3 लाख रुपए। तो इस तरह से ये स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल फाइनलाइज हुआ और उसकी अमाउंट हमने बैलेंस शीट में पहुंचाई। अब हेड वाइज टोटल करेंगे तो लायबिलिटी साइड पे शेयर होल्डर्स फंड के हेड का टोटल है 11,10,000। उसके अंदर 3 आइटम है, इक्विटी शेयर कैपिटल, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व्स एंड बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। टोटल इज 11,10,000। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, यहाँ पे नॉन करंट लायबिलिटी में 3 में से एक ही हेड में आइटम है, इसलिए 5,25,000 उसका टोटल। करंट लायबिलिटी में भी 4 में से एक ही हेड में अमाउंट है 90,000। अब ये तीनों आइटम का यानी शेयर होल्डर्स फंड, नॉन करंट लायबिलिटीज एंड करंट लायबिलिटीज का टोटल 17,25,000। 17,25,000 is liability side total. Now in case of assets, first is fixed asset. Non current assets में पहले fixed asset, इसमें टेंजिबल 12 लाख, इंटेंजिबल की कोई अमाउंट नहीं है, तो टोटल एसेट्स यहाँ पे फिक्स एसेट्स का हेड 12 लाख रुपए बाहर आएगा। उसके साथ 3 और आइटम है, लेकिन उसमें से सिर्फ एक आइटम नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 2,10,000 इज गिवन। टुगेदर ये दो अमाउंट मिलके 14,10,000 इज द अमाउंट ऑफ नॉन करंट एसेट्स। टोटल नॉन करंट एसेट्स इज 14,10,000। जिसके साथ अब करंट एसेट्स, तो करंट एसेट्स में 6 डायमेंशन है, 6 फोल्ड है, उसमें से 3 फोल्ड में अमाउंट है और वो तीनों का टोटल है 3,15,000। 14,10,000 ऑफ नॉन करंट एसेट्स एंड 3,15,000 ऑफ करंट एसेट्स टुगेदर कंस्ट्रक्ट asset side of balance sheet and its amount is 17,25,000. So in this way this balance sheet should be tally, liability should be equal with assets. इस तरह से ये फाइनल अकाउंट्स के सम एग्जीक्यूट करने हमें। अब तक के सेशंस में हमने जो क्वेश्चंस देखे थे वो सिर्फ पार्ट में क्वेश्चंस थे, यानी ओनली असेट, ओनली लायबिलिटी या ओनली स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। दिस लास्ट 2 क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज डील्स विथ एंटायर फाइनल अकाउंटिंग प्रोसेस, means deals with statement of P&L along with balance sheet, and its total cost is 11 marks. 11 mark long question in last section is going to ask in board examination. तो उसके लिए ये 2 important question है, इसको thoroughly study करना है। Next session we will deal with comparative and common size statement as a part of analysis of financial statement. Till then, thank you.